کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو دنیا میں چلتا ہے لیکن اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں۔ ایک ایسا شخص جو اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب تقدیر مڑتی ہے اور اس سے پہلے کہ کوئی سمجھ سکے کہ وہ کون تھا، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ صدیوں سے زندہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ آنے والی چیزوں کو ان کے آنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے، اور کچھ سرگوشیوں میں کہتے ہیں کہ وہ وقت میں ایسے قدم رکھتا ہے جیسے ہم دروازے سے گزر جاتے ہیں۔ دنیا اسے صرف ایک نام سے جانتی ہے، خضر، گمشدہ لوگوں کا رہبر، چھپے ہوئے علم کا امین، وہ بندہ جسے عطا ہوا علم لدنی، وہ علم جو براہ راست اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جسے نہ کتابیں چھوتی ہیں، نہ اسباق، نہ انسانی تجربات۔ خضر کون ہے؟ اللہ نے اسے وہ راز کیوں دیے جو حتیٰ کہ کچھ انبیاء تک کو نہ دیے گئے؟ اور کیا وہ واقعہ ہونے سے پہلے اس کا انجام دیکھ لیتا تھا؟ آج رات ہم اسلام کی سب سے پراسرار شخصیت کے راستے پر چلیں گے۔ اس کے قدموں کا کوئی سایہ نہیں، اس کی کہانی کا کوئی یقینی انجام نہیں، لیکن اس کی موجودگی ہر چیز بدل دیتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ سے کبھی نہ چھوٹیں۔ اگر آپ تیار ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ سلطنت مٹی سے اٹھنے سے بہت پہلے اور بنی اسرائیل کے صحرا عبور کرنے سے بہت پہلے اللہ نے ایک ایسے بندے کو پیدا کیا جس کی عمر، علم اور مشن دنیا کے کسی بھی انسان جیسا نہ تھا۔ اس کا نام دنیا سے چھپایا گیا تھا، اس کی اصل کو راز رکھا گیا تھا، اس کا سفر عالم غیب میں لکھا گیا تھا۔ اللہ نے اسے صرف ایک لقب سے بیان کیا۔ ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا۔ سورۃ الکہف۔ یہ تھا علم لدنی، تقدیروں کا علم، انجام کا علم، ہر واقعے کے پیچھے چھپی حکمت کا علم، اس سے پہلے کہ واقعہ پیش آئے۔ یہ علم انسانی وقت سے باہر تھا۔ خضر نے نہ انبیاء سے سیکھا، نہ تجربے کی آزمائشوں سے، نہ زندگی کے سالوں سے۔ وہ سچائی اسے دی گئی، اس کے دل میں براہ راست اتاری گئی، جیسے نور کسی برتن میں بھر دیا جائے۔ لیکن کہیں زمین پر ایک نبی اس کی طرف ہدایت پائے گا، ایک ایسا انسان جو ایسی حقیقتوں کے سوال لے کر آیا جو انسانی سمجھ سے باہر تھیں۔ وہ انسان تھا موسیٰ علیہ السلام۔ کہانی ایک سوال سے شروع ہوتی ہے۔ ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک طاقتور خطبہ دیا جس نے ان کی قوم کے دلوں کو ہلا دیا، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا، اے موسیٰ، زمین پر سب سے زیادہ علم والا انسان کون ہے؟ موسیٰ نے پوری سچائی سے جواب دیا، میں ہوں۔ لیکن فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، نہیں موسیٰ، زمین پر ایک ایسا شخص ہے جو وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ ڈانٹ نہیں تھی، یہ ایک سبق تھا، عاجزی کا سبق، یاد دہانی کہ علم ایک عطیہ ہے، کوئی اعزاز نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سیکھنے کے شوق میں بولے، اے اللہ، میں اس بندے کو کہاں پاؤں؟ اللہ نے ایک انوکھا نشان دیا، اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، جہاں تم اسے کھو دو گے وہیں تم اسے پاؤ گے جسے تم تلاش کر رہے ہو۔ اور یوں ایک سفر شروع ہوا جو معلوم دنیا کی حدود کو مٹانے والا تھا۔ موسیٰ اپنے نوجوان ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ روانہ ہوئے، کٹھن رستوں سے گزرتے ہوئے، نوکیلے پہاڑوں کے اوپر اور ساحلوں کے لمبے لمبے کناروں کے ساتھ ساتھ۔ تھکن ان کے ساتھ تھی، مگر مچھلی ایک مختلف تقدیر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب موسیٰ ایک بڑے پتھر کے پاس آرام کر کے سو گئے تو وہ مردہ مچھلی اچانک کانپی، زندہ ہوئی، ٹوکری سے نکل کر سمندر میں کود گئی، یوں جیسے پانی میں ایک روشنی کا راستہ بنا رہی ہو۔ یہ ایک معجزہ تھا اور ایک نشان۔ لیکن یوشع تھکن سے مغلوب ہو گیا، یہ بات بھول گیا۔ کچھ دیر بعد موسیٰ نے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ تب یوشع کو یاد آیا، موسیٰ فوراً واپس چل پڑے، ان کے دل نے جان لیا تھا
जिसे वो तलाश कर रहे थे वो करीब था। उस चट्टान के करीब जहां से मछली गायब हुई थी, मूसा ने एक आदमी को देखा जो सब्ज लिबास में मलबूस था और समंदर की लहरें उसके इर्द गिर्द पुरसुकून अंदाज में घूम रही थीं। वो ना जवान लग रहा था, ना बूढ़ा, ना मानूस, ना अजनबी। उसकी मौजूदगी कदीम महसूस होती थी, गोया वक्त उस पर असर नहीं करता था। मूसा इसके करीब गए और कहने लगे, क्या आप वही अल्लाह के बंदे हैं जिसे मुझे पाने का हुक्म दिया गया है? खिज़र ने ज़रा सा सर उठाया, चेहरा बेतासुर। तुम मूसा हो, बनी इस्राएल के नबी। मूसा ने पूछा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो आपको अता किया गया है? खिज़र ने ऐसे अल्फाज कहे जिनमें कई छुपे हुए मानी थे। तुम हरगिज सब्र नहीं कर सकोगे मेरे साथ। ऐसी बातों पर तुम कैसे सब्र करोगे जिनका इल्म तुम्हें नहीं दिया गया? ये तकब्बुर नहीं था, ये हकीकत थी। जो कुछ मूसा देखने वाले थे वो इंसानी फैसले की बुनियादें हिला देने वाला था। लेकिन मूसा ने इसरार किया, अगर अल्लाह चाहे तो आप मुझे साबिर पाएंगे। खिज़र ने कबूल किया, लेकिन खबरदार किया, अगर तुम मेरे साथ चले तो किसी चीज़ पर सवाल न करना जब तक मैं खुद तुम्हें इसकी हकीकत ना बता दूं। उस वादे के साथ कुरान की सबसे पुरअसरार सफ़र का आगाज़ हुआ। एक ऐसा सफ़र जहां तकदीर उनके साथ चल रही थी और वक्त खिज़र के कदमों के आगे झुक रहा था। खिज़र और मूसा साहिल के साथ साथ चलते रहे, हत्ता कि उन्होंने चंद गरीब मल्लाहों को देखा जो अपनी छोटी सी लकड़ी की कश्ती तैयार कर रहे थे। खिज़र को पहचानते ही मल्लाहों ने निहायत खुशी और एहतराम से उन्हें बगैर किसी किराए के सवार होने की पेशकश की। ये उस पुरअसरार शख्स के लिए उनकी मोहब्बत की निशानी थी। समंदर पुरसुकून था, हवा नरम थी, लेकिन अचानक खिज़र कश्ती के किनारे की तरफ बढ़े और अपने हाथों से एक तख्ता निकाल दिया। लकड़ी में दरार पड़ गई, पानी अंदर रिसने लगा। मूसा हैरान रह गए। आपने क्या किया? आपने उनकी कश्ती तोड़ दी ताकि ये लोग डूब जाएं? ये बहुत बुरा काम है। खिज़र ने पुरसुकून लहजे में कहा कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे? मूसा फौरन शर्मिंदा हुए। उनका दिल मुखलिस था, लेकिन उलझा हुआ भी। आखिर एक नेक बंदा मासूम लोगों के माल को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? खिज़र ने उनकी माजरत कबूल कर ली, लेकिन यह सिर्फ आगाज था। वो दोनों आगे चलते रहे, हत्ता कि वो एक बंजर पथरीले इलाके में पहुंचे। वहां उन्होंने बच्चों का एक गिरोह देखा जो खेल रहा था। उनमें एक लड़का था, खामोश, अलग थलग, आंखों में एक सर्द और सख्त जिद के साथ। मूसा देखते रहे कि खिज़र उस लड़के के करीब गए और उसकी जान ले ली। मूसा खौफ से पीछे हट गए। आपने एक मासूम जान मार दी, एक जिंदगी, ये तो बहुत हौलनाक काम है। खिज़र का जवाब नरम था, लेकिन अटल। क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा का दिल लरज़ उठा। ये अमल हर वजाहत से बाहर महसूस हुआ, मंतक से बाहर, इंसानी अखलाकियात से बाहर। उन्होंने फिर माजरत की, लेकिन खिज़र ने कहा, अगर तुमने मुझसे एक बार और सवाल किया तो हम जुदा हो जाएंगे। आखिरी आजमाइश करीब थी। वो दोनों एक बस्ती में दाखिल हुए, भूख और थकन से निढाल। उन्होंने अहले बस्ती से खाने की दरख्वास्त की, लेकिन लोगों ने सख्ती और बेरहमी से इनकार कर दिया। गुस्से से वहां से जाने के बजाय खिज़र ने बस्ती के किनारे एक गिरती हुई दीवार देखी और वो उसे ठीक करने लगे, पत्थर पर पत्थर रखते हुए, मोहतात तरीके से, सब्र के साथ। मूसा हैरान रह गए। आपने उन लोगों के लिए दीवार ठीक कर दी जिन्होंने हमें खाना देने से इनकार किया? आप उजरत भी मांग सकते थे। ये आखिरी सवाल था। खिज़र खड़े हुए, अपने हाथों से मिट्टी झाड़ी और कहा, ये वो मकाम है जहां हम जुदा होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम बर्दाश्त ना कर सकते थे।
खिजर ने हकीकत खोल दी। सबसे पहले कश्ती। मैंने उसे इसलिए नुकसान पहुंचाया क्योंकि हमारे पीछे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन रहा था। मैंने उसे ऐबदार करके उन गरीब मल्लाहों की कश्ती को बचा लिया। जो चीज नुकसान जैसी लग रही थी वो असल में हिफाजत थी। दूसरा, लड़का। ये लड़का बड़ा होकर अपने मोमिन वालिदैन के लिए शदीद आजमाइश और तकलीफ बनने वाला था। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें इसकी जगह एक ऐसा बच्चा दिया जाए जो पाक और नेक हो। जो चीज जुल्म दिखाई दे रही थी वो असल में रहमत थी। तीसरा, दीवार। इसके नीचे 2 यतीम लड़कों का खजाना था। उनका बाप नेक आदमी था। अल्लाह ने चाहा कि वो खजाना महफूज रहे हत्ता कि वो दोनों बड़े हो जाएं। इसलिए मैंने दीवार दोबारा तामीर कर दी ताकि उनका हक महफूज रहे। जो चीज बेमानी लग रही थी वो असल में रब्बानी हिकमत थी। फिर खिजर ने वो अल्फाज कहे जो क़यामत तक गूंजते रहेंगे। मैंने ये सब अपनी तरफ से नहीं किया। ये वो इल्म है जो अल्लाह ने मुझे बराह रास्त सिखाया है। ये कहकर खिजर मूसा की नजरों से ओझल हो गए और आम इंसानी तारीख के सफ़हात से भी, लेकिन दुनिया से नहीं। अपने आमाल के रब्बानी राज जाहिर करने के बाद खिजर मूसा अलैहिस्सलाम से जुदा हो गए। उनका मुश्तरका सफ़र ख़त्म हो चुका था, लेकिन खिजर का अपना सफ़र अभी शुरू हुआ था। उसी लम्हे से खिजर आलम गैब की हदों में दाखिल हो गए। हवा के साथ हरकत करते हुए सिर्फ वहाँ जाहिर होते जहाँ तकदीर उन्हें बुलाती, और कभी भी इतनी देर नहीं रुकते कि लोग उनकी हकीकत की तस्दीक कर सकें। दुनिया के लिए वो बन गए एक सरगोशी, एक अफवाह, एक मौजूदगी जो महसूस तो होती थी मगर देखी बहुत कम जाती थी। और फिर सदियों के दौरान कहानियाँ उभरने लगीं, ऐसी कहानियाँ जो इतनी मुसलसल, इतनी तफसील से भरी हुईं, इतनी ताकतवर थीं कि नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। कहानियाँ एक सब्ज़ चादर ओढ़े शख्स की जो जिंदगियों को बचाता था, मुसाफिरों की रहनुमाई करता था, बादशाहों की इस्लाह करता था और खोए हुए लोगों को निकाल लाता था इंसानी तारीख के मुख्तलिफ अदवार में। क्या बाकी एक शख्स इतनी लंबी उम्र जी सकता था? क्या खिज्र अब भी ज़मीन पर चल रहे थे या ये सब सिर्फ दास्तानें थीं? जवाब अफसानों से ज़्यादा अजीब था। सदियों तक इस्लामी उलमा ने खिजर की उम्र के बारे में बहस की। कुछ कहते थे कि वो अमर नहीं थे, बल्कि अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी को एक ऐसे मिशन के लिए तूल दिया जो नस्लों तक फैला हुआ था। दीगर इसरार करते थे कि उन्हें एक ख़ास किस्म का वजूद अता किया गया, न मुकम्मल तौर पर इंसानों में और ना ही पूरी तरह गैब में। एक ऐसा बंदा जो वक्त की तहों के दरमियान जिंदा था। इमाम नववी ने लिखा, खिजर जिंदा हैं, बहुत से नेक लोगों ने उनसे मुलाकात की है। इब्ने तैमिया ने लिखा, खिजर सिर्फ उसी वक्त जाहिर होते हैं जब अल्लाह के हुक्म से ज़रूरत हो। और कुछ उलमा ने इससे भी ज़्यादा पुरअसरार बात कही, खिजर हमेशा ज़मीन पर मौजूद होते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक एक ही लम्हे में नहीं रहते। वक्त उन्हें रोक नहीं सकता था, उम्र उन्हें महदूद नहीं करती थी, उनका मकसद हमेशा जारी रहता था। लेकिन ये सब महज नज़रियात नहीं थे। सदियों से ईरान, अरब, हिंदुस्तान, अफ्रीका, अंदलुस, हर जगह से सैकड़ों वाक़यात सामने आए जो एक ही शख्स, एक ही लिबास और एक ही नाकाबिले यकीन मोजज़ात को बयान करते थे। और हर कहानी इसी तरह शुरू होती थी, मैंने एक सब्ज़ लिबास वाला आदमी देखा। इब्तिदाई दर्जशुदा वाक़यात में से एक ज़ुल्क़रनैन के दौर का है, वो अजीम बादशाह जिसका जिक्र सूरतुल कहफ में आया है। कदीम रिवायात के मुताबिक ज़ुल्क़रनैन एक बार मालूम दुनिया के किनारे तक सफ़र कर गए, रेगिस्तानों, समंदरों और पहाड़ों को पार करते हुए। वहाँ एक तन्हा साहिल पर उन्होंने एक आदमी को समंदर की लहरों के ऊपर खड़े देखा, जैसे वो खुद समंदर से गुफ्तगू कर रहा हो।
बादशाह उसके करीब गए और पूछा, तुम कौन हो? वो शख्स मुड़ा, उसकी आंखें पुरसुकून, बेउमर। मैं वो बंदा हूं जिसे अल्लाह ने रहमत और इल्म सिखाया है। जुल्करनैन फौरन समझ गए, ये खिज़र थे। दोनों साथ चलने लगे, तकदीर, अदल और क़ियादत के बारे में गुफ्तगू करते हुए। खिज़र ने उन्हें खतरे वाली जगहें दिखाईं, जंगों के बारे में पहले ही खबरदार किया और वो पोशीदा फसाद जाहिर किया जिसे अजीम बादशाह भी नहीं देख सकते थे। कुछ उलमा का ख्याल है कि यही वो मुलाकात थी जिसने जुल्करनैन को याजूज माजूज के खिलाफ अजीम दीवार बनाने की तरगीब दी। उनकी आखिरी गुफ्तगू के बाद खिज़र ने कहा, यहाँ से हमारे रास्ते जुदा होते हैं। और जब जुल्करनैन ने पलट कर देखा, खिज़र वहाँ नहीं थे, हवा में तहलील हो चुके थे। सदियों बाद उमवी दौर के इब्तदाई ज़माने में एक काफ़िला रबुल खाली सहरा उबूर कर रहा था। अरब का सबसे सख्त सहरा, जहाँ प्यास से हज़ारों लोग हलाक हो चुके थे। उनका पानी ख़त्म हो चुका था, ऊंट गिर रहे थे, मौत उनके इर्द गिर्द एक साए की तरह मंडला रही थी। फिर नाउमीदी की आखिरी हद पर उन्होंने दूर एक तन्हा सवार को देखा। वो सब्ज़ चादर पहने हुए था जो तेज़ जलती हुई हवा में लहरा रही थी। उसका ऊंट रेत के टीलों पर नाकाबिले यकीन आसानी से चल रहा था। काफिले के सरदार ने पुकारा, भाई क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हम मर रहे हैं। सवार नीचे उतरा, अपना हाथ रेत पर रखा और जमीन से ठंडे पानी का चश्मा फूट निकला। पूरा काफिला सजदे में गिर पड़ा। वो अभी शुक्र भी ना कर पाए थे कि सवार ने सिर्फ ये कहा, याद रखो अल्लाह इखलास वालों को कभी नहीं छोड़ता। और वो रुखसत हो गया। उसके कदमों के निशान सहरा में ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। बाद में जब काफिला करीबी बस्ती पहुंचा और लोगों को उस शख्स का हाल सुनाया तो उलमा ने फौरन पहचान लिया, तुमसे खिज़र की मुलाकात हुई है। इस्लामी तारीख के दौरान बेशुमार उलमा ने ऐसे एक पुरस्रार शख्स से मुलाकातों का जिक्र किया जिसने उनकी गलतियां दुरुस्त की, उनके मुश्किल तरीन सवालात हल किए या उन्हें खतरे से निकाला। इन उलमा में शामिल थे इमाम शाफई, फुज़ैल बिन अय्याज, अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमामुल गज़्ज़ाली, इब्न अरबी और बायज़ीद बस्तामी। इनमें से बहुत से ऐसे लम्हात बयान करते हैं जब एक शख्स उनके पास आया, बिल्कुल वही जवाब दिया जिसके साथ वो जद्दोजहद कर रहे थे और फिर भीड़ में गायब हो गया। दीगर कहते हैं कि उन्हें ऐसी नसीहत मिली जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। बाज ने लिखा, मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो खिज़र थे। ये ख्यालात नहीं थे, ये इस्लाम के सबसे काबिल एतमाद उलमा की रिवायात थीं, लेकिन कहानियां इससे भी ज्यादा अजीब हो गईं। आखिर क्यों एक ऐसा शख्स जिसमें इतनी हिकमत हो, इतनी पाकीज़गी हो, इतना इलाही इल्म हो, इंसानियत से पोशीदा रखा गया? एक ऐसे रहनुमा को क्यों छुपाया गया जो कौमों को बचा सकता था और पूरी तहजीबों को तालीम दे सकता था? उलमा ने समझाया, कभी कभी अल्लाह बाज बंदों को इसलिए छुपा देता है क्योंकि उनकी मौजूदगी माशरे के लिए बहुत ताकतवर होती है। अगर खिज़र सबके सामने जाहिर होते तो लोग उनका पीछा करते, उन्हें पूजने लगते, उन पर इन्हिसार करने लगते, उन्हें एक बुत बना देते, अल्लाह की तरफ रुजू करने के बजाय। लोग उनसे मोजज़े मांगते, दुआ नहीं, उनसे जवाब तलब करते, वही से नहीं, उन पर भरोसा करते, अल्लाह पर नहीं। और खिज़र का मिशन कभी भी रहनुमाई की जगह लेना नहीं था, बल्कि उसे महफूज रखना था। वो सिर्फ उसी वक्त जाहिर होते जब किसी खास लम्हे को इलाही तस्हीह की ज़रूरत होती, जब तकदीर को एक मामूली सी तब्दीली दरकार होती ताकि किसी ज़िंदगी, किसी कौम या मुस्तकबिल के किसी वाक़े को बचाया जा सके। इसलिए अल्लाह ने उन्हें छुपा दिया, न सज़ा के तौर पर बल्कि रहमत के तौर पर। छुपी हुई चीज़ें हमें महफूज रखती हैं, छुपी हुई चीज़ें हमें आजमाती हैं, छुपी हुई चीज़ें ईमान को मजबूत करती हैं। और खिज़र इन्हीं छुपी हुई चीज़ों में से एक बनने के लिए मुक़द्दर थे। उनकी कहानी से हम ये सीखते हैं, अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा करो, ताख़ीर को कबूल करो, उलझन में सब्र करो,
नुकसान का फौरी फैसला न करो। फौरन जवाब मांगना छोड़ दो। यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत उन तरीकों से करता है जिन्हें तुम नहीं देख सकते। समझो कि इलाही हिकमत हमेशा काम कर रही है। खिज़र हमें दिखाते हैं कि जिंदगी बेतरतीब नहीं है, जिंदगी इत्तिफाक नहीं है, जिंदगी अंधा खेल नहीं है। जिंदगी एक कायनाती नक्शा है जो इलाही हिकमत के साथ बुना गया है। तुम्हारा दिल टूटना, तुम्हारी जद्दोजहद, तुम्हारी रुकावटें, तुम्हारी नामुकम्मल दुआएं शायद तुम्हारे मुस्तकबिल को उन तरीकों से बचा रही हों जो तुम बरसों बाद ही समझ पाओगे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र को नहीं समझ सके, हम भी अक्सर अपनी ज़िंदगी की हिकमत को समझने में नाकाम रहते हैं, लेकिन अल्लाह का मंसूबा हमेशा कामिल होता है। और यूं खिज़र इस्लाम की सबसे बड़ी पुरस्कार शख्सियात में से एक रहते हैं। एक बंदा जिसे अल्लाह ने छुपाया, एक मुसाफिर जो वक्त की कैद से आज़ाद है, एक रहनुमा जो ज़रूरत के वक्त ज़ाहिर होता है और अपना काम मुकम्मल होते ही गायब हो जाता है। शायद वो आज भी ज़मीन पर चलते हों, शायद वो आंखों नहीं दिलों पर ज़ाहिर होते हों, शायद वो सिर्फ उन लोगों के पास जाते हों जिन्हें अल्लाह मुंतखब करता है, या शायद उनकी पूरी कहानी एक अबदी याद दहानी के लिए थी। हर तकलीफ़ के पीछे हिकमत है, हर आजमाइश के पीछे मकसद है, हर नुकसान के पीछे रहमत है, और अल्लाह की तदबीर हमारी समझ से हमेशा कहीं ज़्यादा गहरी है। खिज़र की ज़िंदगी छिपी हुई हो सकती है, लेकिन उनका पैगाम नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह हम इन कुरानी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और आप भी इस्लाम को फैलाने का हिस्सा बन सकते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।